Hello friends, good morning and welcome back to the channel. So today we will discuss the various types of services offered by operating system. So different operating systems can provide different set of services. Some of the basic services provided by operating system are: first is program execution. So what is program execution? Operating system provides a convenient environment where user can run their programs. एक ऐसी environment को provide करना जिसमें users जो अपने programs को run कर सकें, execute कर सकें is the main function of program execution. Second is the system must be able to load a program into a memory and to run that program and execution are either normally और इंडिकेटिंग एरर, या तो इंडिकेट करना एरर्स क्या हैं या उन फंक्शंस को प्रॉपरली रन करके देखना, एक आउटपुट लानी इज द सेकेंड ऑप्शन ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. Next services provided by operating system is input output operations. So you all know that what are inputs and output operations क्या होते हैं. All input output are performed under the control of operating system. जितने भी आपके computer systems में input devices, output devices हैं and जो भी उनकी operations हैं, that would be controlled by operating system only. So these are two services. Next service is file system manipulation. So file system manipulation में क्या होएगा? The file system क्या होता है? Is a particular एक फाइल है, जैसे उसको आप रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो फाइल्स या डायरेक्टरीज कर रहे हो, उसको क्रिएट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, मतलब सब काइंड ऑफ वर्क जो आप फाइल पे कर रहे हो, दैट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली. सो द यूजर जस्ट गिव कमांड्स टू रीड or to write a particular file. The rest of work is done by an operating system. Simple as that. Next one is communication. Communication means the process of executing on a system may need to communicate in order to exchange data or information. आप data या information जो exchange कर रहे हो between the processes हो रही है, between the computer systems हो रहे हैं, this is known as communication. So communication may be by a shared memory हो सकता है या message passing के through हो सकता है, or operating system provides this communication by using a facility of message passing. Message passing means in message passing, packets of informations are moved between processes by the various operating systems. Next service है that is very important, that is error detection. Error detection means आप detect कैसे करवाओगे errors को? अगर आपके किसी प्रोग्राम में या प्रोजेक्ट में कोई एरर डिटेक्ट हो रहा है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ पॉसिबल एरर्स. कैसे एरर आ सकते हैं? में अकर इन CPU, ठीक है, प्रोसेसर यूनिट में आ सकते हैं या फिर आपके मेमोरी हार्डवेयर में आ सकते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में या यूज़र प्रोग्राम्स में. सो फॉर ईच टाइप ऑफ एरर ऑपरेटिंग सिस्टम शुड टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन. वो पर्टिकुलर एक एक्शन लेगा हर टाइप ऑफ एरर के लिए टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग. ठीक है. नेक्स्ट हमारा आ गया डिबगिंग फैसिलिटी. डिबगिंग मीन्स यू आर चेकिंग द कोड line by line to find out the possible errors. So debugging facilities can greatly enhance the user and programmer's abilities to efficiently use the system. This is the another services offered by operating system. Next we have resource allocation. Like जैसे हमने last लेक्चर में भी किया था, इसको रिसोर्स एलोकेटर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? व्हेन मल्टीपल यूजर्स और मल्टीपल जॉब्स रनिंग कंकरेंटली, साथ साथ वो चल रही हैं, रिसोर्सेज मस्ट बी एलोकेटेड टू ईच ऑफ देम. सो शेयरिंग की जाएगी रिसोर्सेज की, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोसेस को रिसोर्स दिया जाएगा. सो ये किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है ये कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाना. मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास? CPU साइकिल्स होते हैं, मेन मेमोरी होती है, फाइल स्टोरेज होती है एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. आपको पता है व्हाट आर द अकाउंट्स, राइट? आप कैसे जनरेट करते हो? सो अकाउंटिंग में क्या आएगा? टू कीप ट्रैक, हमने एक रिकॉर्ड जो है मेंटेन करना है, टू कीप ट्रैक ऑफ विच यूज़र यूज हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज. सो ये जो सारा एक ट्रैक है, एक रिकॉर्ड है, दैट शुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. लास्ट इज प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी. So these are two main terms in these days. Protection भी हमें चाहिए and security भी चाहिए.
मेन डिफरेंस क्या है, प्रोटेक्शन जो है वो इन्वॉल्व, आई थिंक आप देख रहे हैं यहाँ पे, प्रोटेक्शन इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट all access to system resources is controlled. It means operating system provides protection to ensure that all the access to system resources, जो भी वो कर रहा है कोई भी, that should not interfere with each other, which means when several processes are executing concurrently, it is important that different processes should not interfere with each other. Like, moreover, these processes should not also interfere with operating system. ठीक है. And security में क्या आएगा आपके पास? Security means security of the system from outside are required. User authentication, बाहर वाले user जो authenticated नहीं है, they cannot access your systems. Standards of defending external input output devices, कोई भी बाहर वाला input output devices आपके system को corrupt ना करे. From invalid access attempts, so maximum attempts वो जितनी बार गलत करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो देखे कि वैलिड यूज़र है या नहीं है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है. सो इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से ले लेंगे. फर्स्ट आपने देखा है इसमें कि लास्ट जो डायग्राम हमने की थी उसमें भी हमने हार्डवेयर कहाँ लिया था, सबसे एंड लेवल पे. सो बेसिक लेवल पे हमारा हार्डवेयर जाएगा, उसके ऊपर वाली लेयर में जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमने सब सर्विसेज पढ़ी हैं वो यही लिखी हुई है. सब सर्विसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोग्राम्स की, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस, कम्युनिकेशंस, रिसोर्स एलोकेशंस, अकाउंटिंग, एरर डिटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इश्यूज. उसके ऊपर आ जाता है हमारे पास सिस्टम कॉल्स. सिस्टम कॉल्स क्या है, एक अनदर आप बोल सकते हो एक टर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम की. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो भी आप काम करवा रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम से या यूज़र ने जो काम करवाना है वो एक तरह से सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही वो करवाया जाता है. तो ये यूज़र इंटरफेसेस जो हैं, यूज़र इंटरफेसेस में भी यही आएगा कि ये जो आप काम करवा रहे हो थ्रू कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करवा रहे हो. जैसे GUI है, विंडोज़ है, वो आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, मतलब आप किसी भी फॉर्म में आप देख सकते हो अपने डेटा को, ठीक है, किस पिक्चर्स की फॉर्म या कुछ भी, मतलब दैट इज़ अ GUI. सिंपल इंटरफेस है. बैच मतलब बहुत बैच है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है. कमांड लाइन इज़ लाइक सिंपल कमांड्स हैं आपकी. कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, आप एक कमांड दे रहे हो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपको रिजल्ट दे रहा है. देन आप सेकेंड कमांड पास कर रहे हो तो उसका रिजल्ट आ रहा है. तो लाइन इंटरप्रेटर्स हैं ये, 1 by 1 लाइन में आएंगी. सो ये सारी चीज़ें कौन जो है आपको दे रहा है, वो यूज़र एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स जो हैं दीज इंटरफेसेस के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरैक्ट करें. और ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज है. आई होप ये आपको क्लियर होगा. एंड इसके बावजूद इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me anytime. Thank you so much for today's lecture.